السلام علیکم ARY نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں ذیشان ملک اور میں ہوں مہرین افتخار. نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر. وزیر اعظم کی تقریباً 3 گھنٹے تک ملاقات ہوئی ہے صدر پوٹن کے ساتھ، اور اس میں ایک ورچوئل لنچ بھی شامل تھا. پوری دنیا کے لیے ایک میسج ہے کہ رشیا اس وقت پاکستان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات چاہ رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان دورہ روس مکمل کر کے اسلام آباد پہنچ گئے. کامیاب دورے سے پاک روس تعلقات کے نئے دور کا آغاز. ماسکو کے سرد ترین موسم میں وزیر اعظم عمران خان اور روسی صدر پوٹن کی 3 گھنٹے طویل گرم جوش ملاقات. عمران خان کا روس کے ساتھ کثیر الجہتی طویل المدتی تعلقات کے عزم کا اعادہ. دونوں رہنماؤں کا باہمی تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق. باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی مشاورت کی گئی. وزیر اعظم کا فلیگ شپ اقتصادی منصوبے پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کی اہمیت کا اعادہ. وزیر اعظم نے کہا مستحکم اور پرامن افغانستان کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کریں گے. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بھی روشنی ڈالی اور مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا. وزیر اعظم نے روس اور یوکرین کی تازہ صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا. کہا تنازع کسی کے مفاد میں نہیں، مذاکرات اور سفارتکاری سے تنازعات کو حل کیا جانا چاہیے. وزیر اعظم نے انتہا پسندی اور اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحانات پر تشویش کا اظہار بھی کیا. وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس میں انتہائی مصروف دن. وزیر اعظم نے ماسکو میں دوسری جنگ عظیم کے سپاہیوں کی یادگار پر حاضری دی اور پھول رکھے. وزیر اعظم نے پاکستانی روسی تاجروں کے ڈنر میں شرکت کی. عشائیے سے خطاب میں کہا پاکستان میں سرمایہ کاری اور کاروبار کے وسیع مواقع ہیں. ہماری حکومت پاکستان میں سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی. صدر پوٹن کی خصوصی ہدایت پر روسی وزراء تجارت اور زراعت بھی موجود. ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال سمیت نمایاں شخصیات بھی ڈنر میں شریک. وزیر اعظم نے ماسکو میں روس کی سب سے بڑی مسجد اور اسلامک سینٹر میں نماز ادا کی. وزیر اعظم عمران خان نے کیتھیڈرل مسجد میں مفتی اعظم سے بھی ملاقات کی. وزیر اعظم نے مسجد اور اسلامک سینٹر کے مختلف حصوں کا دورہ کیا. وفاقی وزراء اور وفد کے دیگر ارکان بھی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ تھے. پاکستان میں کئی لوگ ہیں جن کی سانس خشک ہوئی ہے، ان کی آنکھوں میں بیچاروں کے پانی ختم ہو گیا ہے، آنسو کے کیا ہو گیا ہے. پاکستان کے لوگ ہیں جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے تھے، ان کے آنسو نہیں رک رہے اور دوسرے انڈینز کے آنسو نہیں رک رہے. پاکستان میں کئی لوگوں کی سانس خشک ہو گئی جن کے پیسے باہر پڑے ہیں اور بھارتیوں کے آنسو رک نہیں رہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں وزیر اعظم کے دورہ روس پر نون لیگی رہنما بچگانہ بیان دے رہے ہیں. ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں، پہلی بار خارجہ پالیسی آزاد ہے. وزیر اعظم اگلا دورہ یورپ کا کریں گے. ہم عالمی سیاست تبدیل ہوتے دیکھ رہے ہیں. ARY نیوز کو ماسکو سے انٹرویو میں فواد چودھری نے کہا پاکستان اپنے مفادات دیکھے گا، کسی کی خواہش پر کسی سے تعلقات رکھنے یا ختم کرنے کا فیصلہ نہیں کریں گے. اور اب ذکر کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس کا. اور براہ راست آپ کو دکھائیں گے ماسکو چلیں گے. ARY سے یہ مناظر ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے. وزیر اعظم کی تقریباً 3 گھنٹے تک ملاقات ہوئی ہے صدر پوٹن کے ساتھ. وزیر اعظم عمران خان کا تاریخی دورہ روس. ARY نیوز کی وزیر اعظم عمران خان کی مصروفیات کی لمحہ بلمحہ کوریج. ARY نیوز نے تاریخی دورے سے ناظرین کو لمحہ بلمحہ آگاہ رکھا. وزیر اعظم کا کامیاب دورہ روس، بدلے میں امریکہ کا نیشنل بینک آف پاکستان پر جرمانہ. $50.4 ملین جرمانہ امریکہ کے فیڈرل ریزرو بورڈ اور فائنینشل سروس نیو یارک نے لگایا. مبینہ اینٹی منی لانڈرنگ کی خلاف ورزی پر امریکی حکام نے اینٹی منی لانڈرنگ قوانین پر عمل کا تحریری پلان بھی مانگ لیا. принято решение о проведении специальной военной операции.
वज़ीर आज़म इमरान खान का तारीखी दौरा रूस से आवाज़ न्यूज़ की वज़ीर आज़म रूसी हमलों में 137 फौजी और शहरी हलाक हुए, सदर यूक्रेन के मुताबिक। और रूस ने यूक्रेन के जौहरी पावर प्लांट चेरनोबिल पर कब्जा कर लिया। दारुल-हुकूमत कैफ भी धमाकों से गूंज उठा। मिलिट्री सेंटर्स पर मिसाइल हमले। रूसी वजारत दिफा का कहना है यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम और एयर बेस तबाह कर दिया। सदर पुतिन ने खबरदार किया, किसी ने मदाखलत की तो नतीजा इंतहाई संगीन होगा। यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज, फिजाई हुदूद बंद। दारुल-हुकूमत कैफ से लोगों की नकले मकानी, बैंकों और एटीएम्स पर रश। यूक्रेन का 5 रूसी तैयारे और हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। यूक्रेनी सदर के गैर मुल्की रहनुमाओं से राब्ता है। रूसी इक़दाम पर नेटो, अमरीका समेत मगरबी ममालिक का शदीद रद्दअमल। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और नेटो का भरपूर जवाब देने का ऐलान। अमरीका का रूस पर सख्त पाबंदियां लगाने का ऐलान। सदर जो बाइडेन ने कहा, रूस ने बिलाजवाब हमला किया, अब नताइज भुगतना होंगे। चीन ने यूक्रेन में अफरा तफरी का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। ईरान ने नेटो को रूस यूक्रेन जंग का जिम्मेदार करार दे दिया। तुर्की की जानिब से यूक्रेन पर हमले की मजम्मत। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने सेफ्टी बुलेटिन जारी कर दिया। रूस यूक्रेन समेत इतराफ में सिविलियन परवाजों पर 90 रोज के लिए पाबंदी आयद लगा दी। पाबंदी का इतलाक 24 मई तक होगा। आर्मी मार्केट में तेल की कीमतों को आग लग गई। 7 साल बाद खाम तेल की फी बैरल कीमत $100 से ऊपर चले गई। हमारे तमाम पाकिस्तानी हजरात मुकम्मल तौर पे महफूज हैं। हमारी एडवाइस के मुताबिक बहुत ज़्यादा लोग पहले ही मुल्क को छोड़ चुके हैं। चंद स्टूडेंट्स जो बाकी रह गए हैं, इनके लिए भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं। जंग ज़दा यूक्रेन में 500 तलबा समेत 1,500 पाकिस्तानी फंस गए। पाकिस्तानी सफीर जनरल रिटायर्ड नोएल खोखर के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी महफूज और राब्ते में हैं। सिफारत खाने की जानिब से शहरियों को तरनोपल शहर पहुंचने की हिदायत की गई है, जहां से उनके इनखला के इंतजाम किए जाएंगे। महसूर पाकिस्तानियों में चिन्योट से ताल्लुक रखने वाले 2 तलबा भी शामिल। वालिद का हुकूमत से बच्चों की बहिफाजत वापसी के इकदाम का मुतालबा। यकीन है जमात इस्लामी हमेशा की तरह हक और सच का साथ देगी, पाकिस्तान के अवाम का साथ देगी। खूबसूरत माहौल में मीटिंग हुई। ये मीटिंग अवाम के लिए बहुत ही बेहतरी की खबर लेकर आई। हुकूमत गिराने का मिशन, अपोजिशन की तहरीक में तेजी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात। दोनों रहनुमा में अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। साबिक वज़ीर आज़म परवेज अशरफ ने कहा, मुलाकात में कौम के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आएगी। लियाकत बलोच का कहना है कि सब कुछ तय कर लिया, मगर अभी बाहर नहीं बताएंगे। की खलीफ जमात है, उनसे भी राब्ते करना, इत्तेहाद खत्म कर मुल्क और कौम पर रहम कर। अभी तो पर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी पकड़ना शुरू नहीं हुआ। हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया। हुकूमत के इत्तेहादी हैं और इसके साथ खड़े हैं। रहनुमा काफ लीग मूनी सिलाही का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को टेलीफोन। कहा, तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन के साथ ताउन का गलत तासुर दिया जा रहा है। स्पीकर असद कैसर ने कहा, जमहूरी इदारों का इस्तेहकाम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। काफ लीग ने हमेशा रवादारी, मुल्की मफाद मद्देनजर रखकर फैसले किए। फजल रहमान और आसिफ जरदारी से मुलाकात में काफ लीग की क़यादत ने इन हाउस तब्दीली की सूरत में पार्लिमानी साल मुकम्मल करने की शर्त रखी। एमक्यूएम के अमीनुल हक और खालिद मकबूल सिद्दीकी का मूनी सिलाही को फोन, जल्द मुलाकात का इम्कान। कराची में तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम रहनुमाओं में मुलाकात। हुकूक सिंध मार्च में शिरकत की दावत मुत्तहदा ने कबूल कर ली। तहरीक इंसाफ का घोटकीता कराची सिंध हुकूक मार्च कल से शुरू होगा। पीपी माफिया खौफजदा है, रात गए कराची में झंडे उतार दिए। विफाकी वजीर अली जैदी का बयान। पीटीआई अरकान सिंध असम्बली राजा अजहर, अदील अहमद का कारकुरान के हमरा एहतजाज। झंडे और बैनर्स उतारे गए। शारे फैसल स्टार गेट ब्लोच कॉलोनी से झंडे लगाने के लिए लाई गई क्रेन भी पुलिस ले गई। एयरपोर्ट थाने में दरख्वास्त दी तो वसूल करने के लिए एसएचओ मौजूद नहीं। राजा अजहर कहते हैं, सिंध हुकूमत पुलिस के जरिए ओछियत कंडे पर उतर आई है।
पिका कानून लागू हो गया तो सबसे पहले वजीर आजम इसकी जद में आएंगे। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं तारीख में जिसने गलत कानून बनाए वो उसी के खिलाफ इस्तेमाल हुए। इमरान खान ने हर पॉलिसी से यू टर्न लेकर लोगों की जिंदगी अजाब बना दी। नून लीग ने पिका कानून इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, गैर आईनी करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान सबको अंधा, गूंगा और बहरा बनाना चाहते हैं। यह हुकूमत नहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। पार्लियामान को ताला लगाने की कोशिश की। लाहौर के इलाके कहना में गत्ते के डब्बे से मिलने वाली लाश यास्मीन नामी घरेलू मुलाजमा की निकली। लाश को घर की मालकन बुशरा और बेटी इरम ने जय वक़ुआ पर फेंका। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात वाक़े की स्टिल फुटेज शेवाई न्यूज ने हासिल कर ली। मां बेटी वाक़े के बाद से फरार। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हमजोनी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक। मोहम्मद अली, मतीउल्ला, उमर, अख्तर हुसैन, शेर और वसीम के नाम से शनाख्त। ISPR ने बताया बड़ी तादाद में हथियार और गोलियां बरामद। बलूचिस्तान के इलाके संबाजा में कलअदम TTP का दहशतगर्द मारा गया। पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स मियां मंशा का नाम स्विस सीक्रेट्स में भी नाम निकल आया। मियां मंशा ने 2005 में 2 अकाउंट्स खोले, एक में 4,98,000 से ज्यादा स्विस फ्रैंक, दूसरे में 1,85,19,000 स्विस फ्रैंक थे। अकाउंट मियां मंशा, उनकी अहलिया और इजी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम पर हैं। लंदन में 5 स्टार होटल की खरीदारी से मुतल्लिक मियां मंशा दहाइयों से तरदीद करते आ रहे हैं। HBL PSL 7 के फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स का मद्दे मुकाबिल कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आज टकराएंगे। फातेह टीम फाइनल में मुल्तान सुल्तान से कप की जंग लड़ेगी। Dawson. Oh, he's got underneath that though, and he's hit it for 6. Oh my goodness. Futas, and that's put away, and they're through. They stay alive. गुज़श्ता रोज पहले एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी का कौमी लीग में सफर तमाम। इस्लामाबाद के फ़हीम अशरफ प्लेयर ऑफ द मैच करार। तो सबसे ज्यादा मजा आता है जब 10 रन और 6 बॉल। दिस इज द बेस्ट टाइम। बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए कि आजम खान और जिस तरह फ़हीम अशरफ खेल रहे हैं उनके लिए तो 2 बॉलर का खेल है। हम लोग की भरपूर तालियों में मेरे उल्टे हाथ पे बैठे अमिताभ बच्चन साहब। क्रिकेट के सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश में सनम जंग बनी मेहमान। शरारतों भरा मुनफरिद खेल खेला वसीम बादामी के साथ। 4.5 पॉइंट्स के साथ हरीम फारूक रवां हफ्ते सबसे आगे। यूनुस खान और तनवीर अहमद के PSL मैचेस पर माहिराना तबसरे। मुस्तफा, आदि और आतिफ ने लगाया कॉमेडी का तड़का। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,30,403 हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 11,180 रुपये और 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपये 18 पैसे का हो गया। UAE में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,258 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 225 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है।